Good evening, dear students. This is the part 2 of cardiac failure or congestive heart failure. We will discuss about the management of cardiac failure in this video. First of all, the medical management. The first thing in the medical management is acute decompensation, chronic management, lifestyle modalities, medications, and minimally invasive therapies also. The pharmacological management is digoxin, beta blockers, inotropes, ARBs, ACE inhibitors, water pills. What is the digoxin and what is the role of digoxin? Exerts a direct and beneficial effect on the myocardial contraction in the failing heart. Means when the heart is not able to pump enough amount of blood, or you can say the needed required amount of blood by the body, by the heart for the body, that time digoxin play a better role. It's directly affect on myocardial muscles of the heart and help to contract, improved cardiac output, and hence kidney perfusion, which may create a mild diuresis of sodium and water. कैसे एक्शन करता है? डाइजॉक्सिन कार्डियक आउटपुट को इन्हेंस करता है जो किडनीज के अंदर जा रहा है. जो किडनी परफ्यूज़न है वहाँ से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है. जब सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में सोडियम लेवल बढ़ेगा. जब ब्लड में सोडियम लेवल इंक्रीज होगा तो ब्लड की सोडियम की प्रॉपर्टी होती है टू रिटेन द वाटर मॉलिक्यूल्स. सो वन सोडियम मॉलिक्यूल कैन रिटेन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स. दैट्स व्हाई द वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऑल्सो विल बी इंक्रीज. जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा. जब कार्डियक आउटपुट थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है तो हार्ट को आने वाली टोटल आउटपुट की 5% ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जिससे हार्ट की कार्डियक मसल्स के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी या कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. डोज ऑफ डाइजॉक्सिन इज 0.125 टू 0.25 mg पर ओरल भी दे सकते हैं, इंट्रावीनस भी दे सकते हैं इन अ डे. हाई डोज इंक्लूडिंग 0.375 टू 0.5 mg पर डे रेयरली नीडेड. मीन्स मैक्सिमम डोज बहुत कम ज़रूरत पड़ती है. अप्रॉक्सीमेटली 0.125 to 0.25 डोज इज सफिशिएंट फॉर ऑफ द डाइजेक्शन फॉर द पेशेंट ऑफ कार्डियक फेलियर. बीटा ब्लॉकर्स टू ट्रीट congestive heart failure. The salt name is correct and trade name is carvedilol. Dose is 0.25 to 50 mg, 1 3.125, 6.25, 12.5 or 25 mg tablets twice in a day, means BD with food. We can't give the beta blockers in empty stomach because they cause ulcers. Inotropes. Agents such as dopamine, dobutamine, and amrinone may be ordered for clients with very low output heart failure. These medications facilitate myocardial contractility and enhance stroke volume. Dopamine given in small dose, maximum dose 4 microgram per kg per minute. जो आइनोट्रोप्स हैं वो डायरेक्टली हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी या उसके कॉन्ट्रैक्शंस कैपेसिटी को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, जिससे जैसे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो हार्ट के द्वारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम निकाला जा रहा है. यू नो द स्ट्रोक वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम विच इजेक्ट बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इन ए सिंगल बीट एंड द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml. ACE inhibitors. ACE inhibitors can raise potassium level. ACV inhibitors can raise potassium level. Acupril is the trade name and salt name, and the trade name is quinapril. 20 to 40 mg, 1 10 or 20 mg tablet by the day, means BD,
on an empty stomach 1 hour before or 2 hours after a meal, or with a light low fat meal. मीन्स यू कैन से विद द ब्रेकफास्ट. इसमें फैट लेवल बहुत कम से कम होना चाहिए. अल्टेस ट्रीटमेंट Ramipril 10 mg 5 mg capsule BD by the day, with or without food, swallow capsule whole. Water pills. There are many brand of diuretics. Some are taken once a day, other are taken 2 times a day. The most common type are thiazides. Short name chlorothiazide. Trade name is Diuril. Chlorthalidone, Hydroton. Next one is Indapamide, Lozol, Hydrochlorothiazide. Trade name Acidrix, Hydrodiuril, and Metolazone, Microx, and another trade name tablet medication is Geroxolane. And the loop diuretics, bumetanide, trade name is Bumax, furosemide is the trade name Lasix, and torsemide Dimadax. These are the diuretics. And you know the role of water pills. They just increase the filtration rate of kidney and decrease the reabsorption rate of kidney. That's why the maximum filtrate will produce by the kidneys, and it will stored in the bladder and urinate by the urethra. Means the urinary output will be increased by the water pills or diuretics drugs. Next one is the surgical management of congestive heart failure. Previously we have seen about the medical management or pharmacological management of the congestive heart failure. Next one you will see surgical management. First one, heart transplantation. मीन्स कंप्लीट हार्ट को रिप्लेस कर देना. जब पेशेंट का हार्ट बहुत ज़्यादा लेवल तक डैमेज हो जाता है, मीन्स उसमें इंफ्रैक्टिव कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें हाइपरट्रोफिक कंडीशंस ज़्यादा हैं, हार्ट इज़ नॉट एबल टू पंप, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता. इन दिस सिचुएशन वी हैव हार्ट ट्रांसप्लांटेशन. लेकिन इसके लिए बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए. मीन्स दोनों को, पेशेंट को और जो डोनर है, डोनर रिसीवर दोनों को ही इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं, और जो डोनर है वो अदर बॉडी ऑर्गन्स अप्रॉक्सीमेटली उसकी बॉडी इमोबिलाइज होनी चाहिए. मीन्स वो अब हिल डुल नहीं सकता, चल नहीं सकता, अनकॉन्शियस है, उसके रिवाइव होने के चांसेस, रिकवर करने के चांसेस बहुत कम है. ऐसे पर्सन, ऐसे डोनर की भी ज़रूरत होती है. व्हेन द हार्ट इज़ irreversibly managed and no longer function adequately, and when the client is at high risk or risk of dying, cardiac transplantation and use of an artificial heart to assist or replace the filling heart are measures. जब पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा डैमेज है, मीन्स पेशेंट इज़ नॉट एबल टू रिकवर द कंडीशंस, हार्ट अप्रॉक्सीमेटली डाइंग कंडीशन पर है, ख़त्म होने वाला है, तब हमें कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है. और ऐसे ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें एक आर्टिफिशियल हार्ट की भी ज़रूरत होती है, जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के दौरान पेशेंट के लिए एक सेकेंडरी हार्ट का काम करेगा. मींस जब हार्ट को ट्रांसप्लांट करेंगे, उसको बॉडी में कनेक्ट किया जाएगा, उस टाइम पर बॉडी को सर्वाइव रखने के लिए आर्टिफिशियल हार्ट होता है जो कि बॉडी को सर्वाइव रखता है. A heart transplant or cardiac transplant is a surgical transplant procedure performed on patient with end-stage heart failure or severe coronary artery disease when other medical or surgical treatment have failed of last resort. Means एक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट को बॉडी रिएक्ट नहीं कर पा रही है, या फिर बॉडी रिकवर करने में एबल ही नहीं है, एंड स्टेज ऑफ हार्ट है, उस कंडीशन में इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है. यानी कि पेशेंट को बहुत सीवियर कॉर्नरी हार्ट डिजीज या इंफ्रैक्टिव कंडीशन हो गई है. इन दैट कंडीशन contraindications, absolute contraindications are advanced kidney, lung और liver disease. ऐसे पर्सन्स जिनको एडवांस किडनी डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं होता उनको हार्ट ट्रांसप्लांट करने का, क्योंकि हार्ट को पहले तो हार्ट को कोप अप करने के लिए, हार्ट को बॉडी से एडजस्ट होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा. लेकिन उन चीज़ों के साथ ये
ऑर्गन्स और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं. एक्टर कैंसर, इफ़ इट इज़ लाइकली टू इम्पैक्ट द सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट, कैंसरस कंडीशन जो कि पेशेंट की लाइफ पर पहले से ही बहुत बुरा असर डाल चुका है या फिर उसका असर आगे आने वाला है, बहुत ख़राब आने वाला, या कंडीशन जो कैंसर कंडीशंस है यानी कि कार्सिनोमल कंडीशंस हैं वो रिकवरेबल नहीं हैं. लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ इंक्लूडिंग एक्यूट इन्फेक्शन और सिस्टेमिक डिजीज सच एज सिस्टेमिक ल्यूपस erythematous, sarcoidosis or myelioidosis, vascular disease of the neck and leg arteries. In these conditions, the heart transplantation is contraindicated. High pulmonary vascular resistance over 5 or 6 Wood units. Relative contraindications: insulin dependent diabetes mellitus with severe organ dysfunction. एक्चुअली डायबिटीज़ मेलिटस में होता क्या है, पेशेंट का इम्यून पावर कम, हीलिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है. मींस अगर जैसे ही हार्ट ट्रांसप्लांट करोगे तो बहुत सारे स्टिचेस होंगे जहाँ पर हार्ट को कनेक्ट किया जाएगा एरोटा के साथ में, पल्मोनरी आर्टरीज और वेंस के साथ में, तो वहाँ पर हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी. मींस हार्ट को सेटल होने में, हार्ट को एडजस्ट होने में, बॉडी के साथ में वर्क करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. मींस पेशेंट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल बहुत कम चांसेस होते हैं. In the patient of dependent diabetes mellitus, insulin dependent diabetes mellitus. Recent thromboembolism such as stroke, severe obesity, age over 65 years, some variations between centers. Old patients are usually evaluated on an individual basis. Active substance abuse such as alcohol, recreational drugs or tobacco smoking, which increase the chance of lung disease. Heart transplantation. So what are the preoperative cares for the heart transplantation? A typical heart transplantation being when a suitable donor heart is identified. हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के पहले हमें एक डोनर चाहिए जो कि सूटेबल है पेशेंट को हार्ट डोनेट करने के लिए. द हार्ट कम फ्रॉम ए रिसेंटली डिजीज्ड और ब्रेन डेड डोनर, ऑल्सो कॉल्ड ए बीटिंग हार्ट कैडवर. मीन्स हमें एक ऐसा डोनर चाहिए जो रिसेंटली किसी बीमारी से ग्रसित हुआ, मीन्स उसका हार्ट अभी नॉर्मल फंक्शन है लेकिन पेशेंट सर्वाइव होने के चांसेस बहुत कम है, या पेशेंट का ब्रेन डेड हो चुका है. ऐसा डोनर ढूंढना पड़ता है. द पेशेंट इज ऑल्सो गिवन इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन सो दैट द पेशेंट इम्यून सिस्टम डज नॉट रिजेक्ट द न्यू हार्ट. और जो पेशेंट है जिसे हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं ताकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके बॉडी से रिजेक्ट ना कर दे, मीन्स उसके साथ इन्फ्लेमेशन कॉज ना करे. देन प्री ऑपरेटिव केयर के बाद, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के बाद में स्टार्ट होता है प्रोसीजर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन. ऑर्थोटॉपिक प्रोसीजर भी हो सकता है और हेटेरोटॉपिक प्रोसीजर. इसके बाद आती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव preparation. The patient is taken to the ICU to recover where they are started immunosuppressant drugs. Means patient को immediately after surgery ICU में शिफ्ट किया जाता है, वहाँ पर सारा डाटा मॉनिटरिंग किया जाता है और पेशेंट को कंटिन्यूसली इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं ताकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम उस हार्ट को बॉडी से रिजेक्ट ना करे, उसके साथ में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को शो ना करे. व्हेन दे आर स्टेबल दे मे मूव टू ए स्पेशल रिकवरी यूनिट फॉर रिहेबिलिटेशन. और आईसीयू में से पेशेंट को रिकवर करने के बाद जो हार्ट के साथ बॉडी कोप अप करना स्टार्ट कर देती है विदाउट इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, पेशेंट का हार्ट मीन्स यू कैन से विदाउट सप्रेसेंट इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग द पर्सन कैन नॉट सर्वाइव इजीली. बट we can say कि with the a minimal dose of immunosuppressant if the patient is able to survive, that time patient transferred to a recovery unit for rehabilitation. The duration of in hospital post transplant care depend on the patient's general health, how well the heart is working and the patient's ability to look after the new heart. मीन्स पेशेंट को हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज करना है या कब रिहेबिलिटेशन यूनिट में भेजना है, ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, कितनी जल्दी हार्ट के इस न्यू हार्ट के साथ में कोप अप कर सकता है, अपनी आने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकता है. एंड नेक्स्ट वन इज़ द surgery is the cardiomyoplasty. What is the cardiomyoplasty? This is a surgical procedure in which healthy muscles from another part of the body is wrapped around the heart to provide support for the falling heart. क्या करते हैं हम कार्डियोमायोप्लास्टी में?
हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट की जो मायोकार्डियम मसल्स हैं वो प्रॉपरली या एक नॉर्मल अमाउंट में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हार्ट में हार्ट को जितना कार्डियक आउटपुट देना चाहिए नहीं दे पाता है, बॉडी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हार्ट के चारों तरफ बॉडी की किसी दूसरे पार्ट से हेल्दी मसल्स को लेकर हार्ट के चारों तरफ रैप कर दिया जाता है, जिनकी वजह से जो मसल्स हमने बॉडी के अदर पार्ट से लेकर के हार्ट के चारों सराउंडिंग्स रैप की हुई हैं वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं, सपोर्टिव हेल्प प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि हार्ट पहले के कंपेयर में अब नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शंस कर पाता है, और जिससे कि बॉडी रिक्वायरमेंट या बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की या ब्लड की ज़रूरत है उतना आउटपुट निकाल पाता है। मोस्ट ऑफन द लेटिसमस डॉर्सी मसल इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ cardiomyoplasty. A special pacemaker is implanted to make the skeletal muscle contract. Cardiomyoplasty is related to damaged myocardium remodeling. Ventricular Assist Device VAD. What is the VADC? It is an electromechanical device for assisting cardiac circulation which is used either to partially or to completely replace the function of a falling heart. Means एक ऐसी डिवाइस है जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी को असिस्ट करती है, लाइक ए पेसमेकर, और ये या तो पार्शियली होती है या फिर कम्प्लीटली रिप्लेस कर देती है कि हार्ट के जो फॉलिंग एक्टिविटी है, अगर हार्ट थोड़ा बहुत वर्क कर रहा है तो इसका एक पार्शियल रोल होता है कि ये हार्ट को उसकी एक्टिविटीज़ को एक पार्शियली असिस्ट करती है कि उसको थोड़ा सपोर्टिव केयर दिया जाए ताकि हार्ट प्रॉपर्ली बीट कर पाए। अगर हार्ट पूरी तरह से फॉलो हो जाता है तो ये पूरे हार्ट के फंक्शंस या कॉन्टैक्टिलिटी इस डिवाइस के ऊपर ही डिपेंड होते हैं कि ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाए। द फंक्शन ऑफ VADs इज़ different from that of artificial cardiac pacemaker. Some are for short-term uses, typically for patient recovering from myocardial infarction or heart attack, and for patient recovering from cardiac surgery. Next one is cardiac resynchronization therapy. What is the cardiac resynchronization therapy or CRT? It resynchronizes the contraction of the heart ventricle by sending tiny electrical impulses to the heart muscle, which can help the heart pump blood through the body more efficiently. जैसे कि नाम से समझ आ रहा हो, रीसिंक्रोनाइज मीन्स जो हार्ट की एसिनोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना रही है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक वे ऑफ मोशन के अंदर एट्रियम्स के अंदर स्प्रेड होती हैं, वहाँ से एवी नोड रिसीव करती है और वेंट्रिकल्स के अंदर एक प्रॉपर अमाउंट उनको सर्कुलेट करती है, ट्रांसफर करती है। लेकिन हार्ट फेलियर कंडीशन में अगर किसी पेशेंट के अंदर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रॉपरली एक वे ऑफ मोशन के अंदर स्प्रेड नहीं होती हैं, इन दैट कंडीशन पेशेंट को एक CRT थेरेपी दी जाती है, जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उनको वापस से सिंक्रोनाइज़ किया था, रीसिंक्रोनाइज़ किया था, मीन्स वापस से एक वे ऑफ मोशन में ट्रांसफ़र किया जाता है जिससे कि हार्ट प्रॉपरली बीट कर पाए। CRT defibrillator or the device is called CRT-D also incorporate the additional function of an implantable cardioverter defibrillator or quickly terminate an abnormally fat life-threatening heart rhythm. Nursing management or palliative care and cardiac rehabilitation exercise. See, the nursing management. The objective of nursing intervention will be improving cardiac output, improving gas exchange, restoring fluid volume balance, improving activity tolerance, supporting the patient experiencing hopelessness, and educating the patient and family regarding care. पैलेटिव केयर मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और रिकवरी चांसेस बहुत कम हैं, तो ऐसे पेशेंट को पैलेटिव केयर दी जाती है, मीन्स ऐसी केयर जिसमें पेन लेवल को कम किया जा सके। पैलेटिव केयर में इंक्लूड होता है फटीग एंड ब्रेथलेसनेस. Fatigue and breathlessness are common problem at the end of life. Other symptoms may include tiredness in the chest, feeling as if you are not getting enough air, or even feeling like you are being smothered.
Family or caregivers can help by encouraging the person to sit upright, increasing the airflow in a room by using a fan or opening a window, helping the person relax and not panic. Eating and digestive symptoms. Symptoms of fatigue, shortness of breath, loss of appetite, and nausea can make it hard for people with heart failure to take in enough calories and nutrients. Wasting of muscles and weight loss are part of the natural disease process. It can help to eat several small meals, choosing foods that are appealing and easy to digest can make it easier to eat. Caregivers should not force a person with heart failure to eat. Other symptoms, anxiety, fear, and sadness, are common among people with end stage heart failure. Family and caregivers should look for sign of these problems. Asking the person about his or her feeling and fear can make it easier to discuss them. Morphine can also help with fearfulness and anxiety. Certain antidepressant may also be useful. So this is the management of congestive heart failure or cardiac failure. Thank you for listening my video, guys. I hope you understand about the congestive heart failure. Thank you.